Okay. So first, I'm coming to a PDF. Now, what is written there? Dynamic routing is necessary to allow the networks to update and adapt quickly to changes. Any change, যদি যে কোনো একটা চেঞ্জ নেটওয়ার্কে যদি হয়, তোমাকে কিন্তু ওই চেঞ্জটা ডাইনামিক্যালি ও অটোমেটিক্যালি প্রত্যেকটা রাউটার আপডেটেড হয়ে যাবে। Through which protocol? That protocol is that which routing, which type of routing? That is known as the dynamic routing. So that is why the name is dynamic, means automatic. অর্থাৎ তোমার কোনো একটা নেটওয়ার্কে যদি চেঞ্জ হয়, সেই চেঞ্জটা অটোমেটিক্যালি যতগুলো রাউটার আছে ততগুলো রাউটারে সেই চেঞ্জটা আপডেটটা চলে যাবে। जितना भी तुम्हारा राउटर होगा, अगर कोई भी चेंज एक नेटवर्क में होगा तो वो चेंज हर एक राउटर में इंस्टेंटली वो अपडेट चला जाएगा। सो किसके थ्रू से जाएगा? जो प्रोसेस के थ्रू से जाएगा, एक्चुअली द राउटिंग प्रोसेस। सो कौन सा टाइप का राउटिंग होगा? ये डायनामिक राउटिंग होगा। That is the process. So that is written here. So dynamic routing is necessary to allow the networks to update and adapt quickly to changes. कोई भी नेटवर्क का कोई अपडेट होगा, कोई भी चेंज होगा, हो सकता है ऐसा तुम्हारा नेटवर्क चेंज हुआ यही नहीं, समझ लो नया एक नेटवर्क जुड़ गया, किसी भी नेटवर्क को तुम वहां से हटा दिया, जो भी चेंजेस होगा तुरंत वो चला जाएगा, जितना भी तुम्हारा राउटर होगा सबके पास वो अपडेट चला जाएगा। That is written here. Am I clear? Am I clear or not? Yes, sir. Okay. Now next কি বলছে? Dynamic routing protocols means the protocols which helps us for dynamic routing. So that those are called the dynamic routing protocols. Dynamic routing protocols can direct the traffic from the same session over different paths in a network for better performance. তার মানে এটা কি দাঁড়ালো? ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল আমাদের কি করছে? বলছে ক্যান ডাইরেক্ট দ্য ট্রাফিক, ডাইরেক্ট করে দিচ্ছে, ট্রাফিকটাকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে ফ্রম দ্য সেম সেশন, একই সময়, ওভার ডিফারেন্ট পাথস ইন এ নেটওয়ার্ক ফর বেটার পারফরমেন্স। তার মানে যেটাকে আমরা বলতে পারি, which we can say that is the load balancing. Suppose I am here, suppose A router is here, another is B router in a distant location. Now from A to B, if you want to reach from A to B, then you have multiple paths. So automatically dynamic routing protocol defines which path should be the best for your communication, or it breaks or it splits the data packet into multiple paths. That is called the load balancing. क्या होगा? एक तरफ A राउटर है, दूसरी तरफ B राउटर है, A और B के साथ मल्टीपल कनेक्शंस है। तो ये हो सकता है जितना भी कनेक्शंस है, कौन सा कनेक्शन उसके अंदर बेस्ट होगा वो रूट फॉलो कर सकता है डेटा पैकेट ट्रैफिक भेजने के लिए, से A से B हो और B से A, व्हाटएवर। और क्या हो सकता है कि वो लोड बैलेंस, जितना डेटा पैकेट जाना चाहिए वो बोला कि भाई मेरा तो 2 रूट है या 3 रूट है या 4 रूट है, चलो भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, मतलब 1024 किलोबाइट का डेटा जाएगा तो 4 रूट में वो डिवाइड हो जाएगा, जाके बी के पास चला गया, ये भी हो सकता है। सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ द डायनामिक राउटिंग प्रोटोकल। ব্যাপারটা কি আমি বোঝাতে পারলাম? যদি কারো কোনো কোয়ারি থাকে আমাকে একটু বলো। এরা চুপ করে থাকে, কিছুই বলে না, আশ্চর্য। Am I clear or not? Yes, sir. Okay. This is known as load sharing or load balancing, जो मैंने अभी बताया। So dynamic routing relies on the routing protocol to share knowledge among the routers, obviously. আমি ডাইনামিক রাউটিংটা ইউজ করছি কেন? বিভিন্ন রাউটারের মধ্যে যে নলেজ মিন্স যে इंफॉर्मेशनটা আছে সেটাকে শেয়ার করার জন্য। डायनामिक राउटिंग का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि हर एक राउटर के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन सबके पास एक होना चाहिए। जैसे कि लास्ट डे जो प्रैक्टिकल हमने दिखाया था, वो जो तीनों तुम्हारा राउटर था, तो तीनों के अंदर
एक सेम रूट सबके इंफॉर्मेशन सबके पास है, हम दिखाया था उस दिन शो आईपी रूट करके, আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম। তাহলে কি বলছে, নেক্সট বলছে দ্য সাকসেস অফ ডাইনামিক রাউটিং डिपेंड्स ऑन टू बेसिक राउटर फंक्शंस। एक डायनामिक राउटिंग अगर सक्सेसफुल उसको होना चाहिए तो दो बेसिक फंक्शंस उसके अंदर रहना है, होना चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ ए राउटिंग टेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। একটা রাউটিং টেবল আমার মেনটেন করতে হবে, সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড, টাইমলি ডিস্ট্রিবিউশন অফ নলেজ in the form of routing updates to other routers. সাপোজ কোনো একটা নেটওয়ার্কে চেঞ্জ হলো, তুমি কি চেঞ্জ হলো, হতে পারে তার নেটওয়ার্ক আইডি চেঞ্জ হয়েছে, মানে নেটওয়ার্কটা বি ক্লাস থেকে সি ক্লাস হয়ে গেছে, বা বি ক্লাস নয় সি ক্লাসই আছে, ধরো 192.168.0.0 নেটওয়ার্ক ছিল, আমি ওটাকে করে দিলাম 192.168.1.0 নেটওয়ার্ক করে দিলাম। সো ইফ দেয়ার ইজ এনি চেঞ্জ, দ্যাট ইজ one update. Another, suppose you have a network, তুমি কি করলে, you add another network there, or you remove a network from this entire network. So any kind of change, if there is, if any, then it should be forwarded to all the routers you have. So that is known as routing update. আমার নেটওয়ার্কে একটা যদি চেঞ্জ হয়, সেই চেঞ্জটা কি হতে পারে, হতে পারে আমার যে নেটওয়ার্ক ছিল সেটাকে আমি চেঞ্জ করলাম, আর একটা কি হতে পারে, আর একটা হতে পারে আমি নতুন কোনো নেটওয়ার্কে অ্যাড করলাম, আবার কি হতে পারে না আমি কোনো নেটওয়ার্কে সরিয়ে দিলাম। সো হোয়াট এভার দ্য থিং ইজ, মেন ব্যাপার হচ্ছে একটা চেঞ্জ হচ্ছে, সেই চেঞ্জটা আমার যতগুলো রাউটার আছে প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেকের রাউটিং টেবলে যেন তার রিফ্লেকশনটা আসে। কিভাবে আসবে না, এই যে রাউটারে চেঞ্জটা হলো, এই একটা রাউটিং আপডেট পাঠাবে যে ভাই এটা আমার আপডেট, তোমরা সকলে জেনে নাও। जो राउटर में ये चेंज होगा उसका काम है क्या, एक अपडेट भेजना जितना भी उसके साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क है उसके सबके पास। सो राउटिंग अपडेट के हिसाब से वो हर एक राउटर के अंदर चलाएगा। सो फ्यू सेकेंड बाद, after few seconds, you can be able to see what are the changes are made, what are the changes in are made in that particular router, that is updated to each and every router. তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে না, তুমি যে চেঞ্জটা ফিউ সেকেন্ড, ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড এর পরে তুমি দেখতে পাবে যে চেঞ্জটা ওখানে হয়েছে সেই চেঞ্জটা তোমার নেটওয়ার্কে কিন্তু চলে এসছে, তোমার রাউটারের মধ্যেও কিন্তু তুমি যদি ওখানে শো আইপি রুট করো, you can be able to see the changes. अगर तुम्हारे पास उस राउटर में कोई चेंज होगा तो वो राउटिंग अपडेट के हिसाब से जब तुम्हारे पास आएगा तो थोड़ा समय के बाद, मतलब फ्यू सेकेंड्स, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स तुम अगर शो आईपी रूट तुम्हारा राउटर में बैठ के ये करो तो उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन तुम देखोगे कि वो चला आया, मतलब वो अपडेट, राउटिंग अपडेट चला आया। सो इसीलिए दो चीजें इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मेंटेनेंस ऑफ ए राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल को सही तरह से इस्तेमाल करना, मेंटेन करना ठीक तरह से, मतलब उसके अंदर जो जो एंट्री है सही होना चाहिए। अगर तुम्हारे नेटवर्क में भी कोई भी चेंज होगा, कोई भी गेटवे या तुम्हारा चाहे जो राउटिंग प्रोटोकॉल का कोई चेंज होगा, जो भी चेंज होगा वो सही तरह से मेंटेन करना है, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड वन इज द टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉलेज, मतलब टाइमली जब चेंज हुआ वो टाइमली सही हिसाब से वो सबके पास उसको जाना चाहिए, तब जाके तुम्हारा एंटायर जो नेटवर्क होगा सबके पास सेम इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल के अंदर रहेगा। दैट इज द क्राइटेरिया। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? सर जो राउटिंग टेबल होता है वो मतलब खुद से क्रिएट होता है क्या? हाँ 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 बोलो फिर से। तो जो राउटिंग टेबल होता है वो खुद से क्रिएट होता है क्या, मतलब ऑटो क्रिएट होता है? एकदम एकदम एकदम, जब भी राउटर चलाएगा, जैसे कि तुम्हारा वो जो स्विच होता है, स्विच जब चालू हो जाता है तो स्विच के रैम के अंदर वो ऑटोमेटिकली मैक टेबल जनरेट होता है। उसी तरह एक राउटर जब चालू हो जाता है तो जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो राउटिंग टेबल ब्लैंक होता है,
उसके बाद तुम कॉन्फ़िगर करने के बाद वो राउटिंग टेबल के अंदर वो सब चला है, जो जो मैंने लास्ट दिन दिखाया था ना, शो आईपी रूट करके, कि उसके अंदर 5 रूट चलाया, 2 कनेक्टेड, 2 रिप के थ्रू से, वो दिखाया था हमने उस दिन, याद करो। यस सर, यस हाँ, सर। तो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर चल जनरेट हो जाएगा, कि उसका हिसाब रहेगा कि भाई मेरा साथ कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड, जो नेटवर्क मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू से हमको रिमोट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो सबके हिसाब उसके अंदर रहेगा। सो राउटिंग टेबल ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाता है। ओके सर राउटिंग टेबल में सर क्या 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 कॉलम रहता है सर? आई विल कम, पहले ये समझ लो, उसके बाद राउटिंग टेबल हम दिखाएंगे कि उसके क्या क्या मायने हैं, ये सब हम बता देंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हेन ए routing algorithm updates a routing table, its primary objects are to determine the best information to include in the table। मतलब মানেটা হচ্ছে যে আমার যখন কোন একটা রাউটিং আপডেট, কোন একটা রাউটিং অ্যালগরিদম মানে রাউটিং প্রোটোকল আপডেটটা পাঠাবে, কোনটা পাঠাবে না, বেস্ট জিনিসটা আমাকে পাঠাবে। বেস্ট কথাটা কেন বলছি, ভাই আমি ইউজিং দ্য বেস্ট, আমি আগের দিন একটা জিনিস দেখিয়েছিলাম, আগের না লাস্ট क्लासे, एडी वैल्यू हम दिखाया था। एडी वैल्यू स्टैटिक का है 1, डायरेक्टली कनेक्टेड का है 0। जिसका एडी वैल्यू जितना कम होगा उसका रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दीनेस उसको ज्यादा होगा। समझ लो एक ही रूट में तुम 2 प्रोटोकॉल डिजाइन किया, एक ही रूट में, एक का एडी वैल्यू 5 है, 5, एक का एडी वैल्यू 4 है। सो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो नेटवर्क, तुम्हारा जो राउटिंग टेबल है, उसमें देखोगे ये दोनों ही रूट रहेगा, लेकिन राउटिंग टेबल में शो होगा जो जिसका एडी वैल्यू कम है उसका रूट शो होगा, क्योंकि उसका ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा है दूसरे के हिसाब से। एम आई क्लियर और नॉट? समझ लो, एडी का फुल फॉर्म क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। Administrative distance. AD value defines the trustworthiness of the protocol. Trustworthiness जिसका AD value जितना, one moment है अनुप, हाँ 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 হ্যাঁ হ্যাঁ, না আপাতত নেই, আমি আগের দিনও গিয়ে চালিয়েছি, ওটা তো আগে, দাঁড়া এক সেকেন্ড, আমি ক্লাসে রয়েছি। হ্যাঁ, আগের দিনে মানে এটা হচ্ছে তার আগের দিন, ওখানে গিয়ে আমি সেদিন করে দিয়েছিলাম। গতদিন মঙ্গলবার গিয়ে যখন চালিয়েছি সবকটা পিসি দেখলাম না ঠিকঠাক চলছে, সবকটা প্রবলেম নেই, না না কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। আমি এই সপ্তাহে গিয়ে আবার গত দিনেরটা পাঠিয়ে দেবো চেক করে। ওকে, ঠিক আছে। Okay, so that is the main point of the thing। क्योंकि देखो समझ लो कि तुम एक रूट दो, एक ही राउटिंग, 2 राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया, 2 या आई मीन जस्ट फॉर एग्जांपल 2, किसके लिए कि एक ही रूट, एक ए से बी, ए बी सी 3 नेटवर्क है, जैसे कि उस दिन लैब में हम डिजाइन किया था, ये तीनों राउटर है, तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम रिप कॉन्फ़िगर करो, तुम स्टैटिक कॉन्फ़िगर करो, तुम देखोगे कि राउटिंग टेबल जब शो होगा ना उसमें रिप नहीं है, क्योंकि रिप का जो एडी वैल्यू वो ज्यादा है स्टैटिक के हिसाब से, क्योंकि स्टैटिक का एडी वैल्यू है 1, मतलब जितना कम एडी वैल्यू उसका ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा है। तो इसीलिए जब राउटिंग टेबल शो होगा ना, वो रिप का जो कॉन्फ़िगरेशन वो रहेगा, लेकिन राउटिंग टेबल में तुम देख नहीं सकोगे, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट होगा कौन सा नेटवर्क का, जिसका एडी वैल्यू कम है उस नेटवर्क का रिफ्लेक्शन राउटिंग टेबल में चला आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया ব্যাপারটাকে আমি বোঝাতে পারলাম? ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট?
ये रिफ्लेक्ट वाला बताइए तो। रिफ्लेक्ट मतलब समझ लो कि तुमने एक तीनों राउटर है, लास्ट क्लास में तुम था क्या लास्ट क्लास में, वो जो ट्यूसडे में हुआ था, हाँ, तो उसमें हम क्या दिखाया था, 3 राउटर है, जस्ट फॉर एग्जांपल वो 3 राउटर लो, जैसे कि RA RB RC है, उसके साथ और R1 R2 R3 जो भी लिया था उसमें कनेक्शन है। तुम एक बार वो स्टैटिक राउट के थ्रू से कॉन्फ़िगर करो, दूसरी बार रीप के थ्रू से कॉन्फ़िगर करो। अब जाके आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीशन जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम एक काम करो, किसी भी एक राउटर में जाके शो आईपी रूट करके राउटिंग टेबल के अंदर में क्या है देखो, तुम देखोगे वहां पर रीप का कोई एंट्री नहीं है, उसमें रहेगा डायरेक्टली कनेक्टेड और स्टैटिक। क्या इसके मतलब वहां पर रीप नहीं है? रीप है, रीप तुम जो कॉन्फ़िगर किया वो तो कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एडी वैल्यू स्टैटिक राउटिंग में कम है रीप के हिसाब से। इसीलिए जिसका एडी वैल्यू कम होगा उसका ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा होगा। मतलब नेटवर्क जब चलेगा तो दो दिखेगा, दो एक स्टैटिक एक रीप है, तो स्टैटिक का क्या है, वो एडी वैल्यू 1 है, रीप का तो ज्यादा है, तो ये मेरे लिए सही होगा, ये रिलायबल होगा, तो आई शुड मेंटेन दिस रूट। तो ऑटोमेटिकली उस राउटिंग टेबल के अंदर तुम जाके देखोगे कि स्टैटिक का एंट्री है, रीप का नहीं है। इसके मतलब ये नहीं है कि रीप कैंसिल हो गया, रीप का कॉन्फ़िगरेशन होगा लेकिन वो हिडन होगा। जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स और स्टैटिक रूट, क्योंकि स्टैटिक रूट के हिसाब से स्टैटिक रूट का एडी वैल्यू कम है 1। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। স্যার রোহিত মেসেজ করেছে, বলো। রোহিত স্যার মেসেজ করেছে। কেন, কি হয়েছে? ও স্যার বলছে আরেকবার বলে দিতে। আবার বলে দিতে, ঠিক আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি বলছি, সেটা হচ্ছে যে তোমার 3টে রাউটার আছে। আগের দিন তোমাদের আমি যে কনফিগারেশনটা দেখালাম R1 R2 R3, তুমি কি করলে, ওই যে কনফিগারেশনটা রাউটিং প্রোটোকল একবার স্ট্যাটিক দিয়ে কনফিগার করলে, একবার রিপ দিয়ে কনফিগার করলে, কোনো অসুবিধা নেই, তাতে তুমি করতেই পারো। তুমি যেই কনফিগারেশনটা করে দিলে, এবার করে দেওয়ার পর তোমার কাজটা কি হবে, তুমি R1 আর R2 আর R3 যে কোনো একটা রাউটারে বসে তুমি শো আইপি রুট করবে। তুমি যেই শো আইপি রুট করবে তুমি দেখতে পাবে যে ওখানে কিন্তু রিপের কোনো এন্ট্রি নেই, ওখানে শুধু স্ট্যাটিক রাউটিংটা দেখিয়ে দিচ্ছে। ইউ মে বি কনফিউজড, তুমি কনফিউজড হয়ে যাবে যে তাহলে কি আমার ব্যাপারটা রিপ কনফিগার করা হয়নি, হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যেহেতু স্ট্যাটিক রাউটিং এর এডি ভ্যালু বিশ্বাসযোগ্য। কেন হ্যাঁ হচ্ছে তো, এই তো রেকর্ড হচ্ছে। এডি ভ্যালুটা কি বলছে, এডি ভ্যালু দিয়ে ডিফাইন করা হচ্ছে রুটের বিশ্বাসযোগ্যতা। যার যত কম এডি ভ্যালু হবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা সেই রুটের তত বেশি হবে। তা আমরা জেনারেল কেসে কি করি, আমরা দুজন লোক আমার কাছে এলো, এসে তুমি দুজনকেই চেনো, তুমি দুজনের যে কারুর হাত দিয়ে একটা জিনিস ধরো সে বিভুকে পাঠাবে, তুমি জানো যে না এই লোকটা হচ্ছে না, এই লোকটা বেশি রিলায়েবল, না আমি এর হাত দিয়েই পাঠাই। কিভাবে বুঝছো তার রিলায়েবিলিটি, তার ট্রাস্টওয়ার্দিনেস? তুমি ডিপেন্ড করতে পারো যে না এ রিলায়েবল, এ ঠিক টাইমলি যাবে দিয়ে আসবে, কিন্তু এ রিলায়েবল কিন্তু অতটা না। এই যে প্যারামিটারটা তুমি আনছো, কিছুর একটা জিনিসের চিন্তা করে আনছো যে না ও একটু খামখেয়ালি বা ওর কথা ঠিক থাকে না, এরকম একটা কিছু বেস করে করছো যে না তার থেকে ওয়াই এর জায়গায় এক্স কে দিয়ে আমি বিভুকে জিনিসটা পাঠিয়ে দেবো। ঠিক এখানেও ব্যাপারটা তাই। এখানে হচ্ছে আমার কাছে দুটো রুট আছে, মানে একই রুট আমি যাব, কিন্তু আমার প্রোটোকল রাউটিং প্রোটোকল হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক আছে একটা রিপ আছে, আমি কোনটাকে প্রেফার করব? দুটো দিয়েই তো যেতে পারবে না, যে কোনো একটা রুট তো প্রেফার করতে হবে। তখন বললো যে না দুটোর এডি ভ্যালু দেখো কোনটা বেশি ট্রাস্টওয়ার্দি, কার বিশ্বাসযোগ্যতাটা বেশি। দেখা গেল যে স্ট্যাটিকের এডি ভ্যালু হচ্ছে 1, সেখানে রিপের বোধহয় 120 বা 90 120। বলো না তাহলে আমার স্ট্যাটিকের এন্ট্রিটাই থাকুক। কেন না রাউটিং টেবিলে তুমি যখন যাবে দেখতে পাবে ওখানে স্ট্যাটিকের এন্ট্রিটা আছে, রিপের এন্ট্রিটা আর বলে যে এন্ট্রিটা ওটা নেই। তার মানে এই নয়
যে রিপের এন্ট্রিটা ওখানে মানে মুছে গেছে, আছে, কিন্তু রাউটিং টেবিল শো করবে না। রাউটিং টেবিল শো করবে যা ট্রাস্ট ওয়ার্দিনেস বেশি তারটা দেখাবে, যে ভাই আমি দুজনের নাম একে দিয়েই দেখাচ্ছি, তুমি দুজনের হাত দিয়েই জিনিসটা পাঠাতে পারো বিভুকে। তার মানে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তোমাকে সাপোজ জিজ্ঞেস করলো রোহিত যে তুই কার হাত দিয়ে পাঠাবি, তুমি বললে আমার কাছে দুটো অপশন আছে, এই দুজনের হাত দিয়েই পাঠাবো, তার মানে দুটো অপশনই তুমি রোহিতকে বললে। কিন্তু তুমি যখন পাঠাবে তখন এক্স এর থ্রু দিয়েই পাঠালে, তুমি বললে না এই দুজনের মধ্যে ওর বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি, ও খুব কনফিডেন্ট এবং ও খুব রেসপন্সিবল, কিন্তু ও একটু খামখেয়ালি, তার মানে তুই প্যারামিটারটা এই জায়গায় চেঞ্জ করলে, তুমি একজনের হাত দিয়ে পাঠালে। সেম থিং ইজ হ্যাপনিং হিয়ার। তোমার স্ট্যাটিক রাউটিং আছে, রিপ আছে, রাউটার কি করলো, যেই দেখলো স্ট্যাটিক রাউটিং এর এডি ভ্যালু কত 1, it is greater than the AD value of the RIP, so automatically router must choose the lowest AD value. It means this route is trustworthy, most trustworthy than the RIP. এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। এবার তুমি প্রশ্ন করতে পারো, বলতেই পারো যে স্যার স্ট্যাটিক রাউটিং এর ক্ষেত্রে ট্রাস্টওয়ার্দিনেস বেশি কেন রিপের থেকে? তার কারণ স্ট্যাটিক রাউটিং এর ক্ষেত্রে তুমি ম্যানুয়ালি গিয়ে প্রত্যেকটা কনফিগার করতে পারছো, তার মানে তোমার গ্রিপে আছে সিস্টেমটা, মানে নেটওয়ার্কটা। কিন্তু ডাইনামিকের ক্ষেত্রে তুমি একটা রাউটারে কনফিগার করে ছেড়ে দিচ্ছ, অটোমেটিক্যালি আপডেট গুলো যাচ্ছে। কিন্তু রিপের ক্ষেত্রে, স্ট্যাটিকের ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু তোমাকে প্রত্যেকটা রাউটারে ঢুকতে হচ্ছে, তোমাকে ম্যানুয়ালি ইন্টারভেন করতে হচ্ছে, ইন্টারভেন করে তাকে ম্যানুয়ালি কনফিগার করতে হচ্ছে, তারপর প্রত্যেকটা রাউটারে তোমার ইন্টারভেনশন থাকছে ম্যানুয়ালি। কিন্তু ডাইনামিক রাউটিং এর ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হচ্ছে সেখানে তুমি একটা রাউটারে কনফিগার করে দিচ্ছ, যেটা আগের দিন করলাম, বাকিগুলোতে তুমি কিন্তু করছো না, ও আপডেটটা পাঠিয়ে দিচ্ছে, তার ফলে রিলায়েবিলিটি এর অনেক বেশি দ্যান দ্য ডাইনামিক রাউটিং। সো দ্যাট ইজ ওয়াই স্ট্যাটিক রাউটিং এর এডি ভ্যালু হচ্ছে 1 আর ডাইনামিক রাউটিং এর এডি ভ্যালু তার চেয়ে বেশি মানে তার ট্রাস্টওয়ার্দি নেক্সট কম উইথ রেসপেক্ট টু দ্য স্ট্যাটিক রাউটিং। বোঝাতে পারলাম না? सर मतलब कि सर जो RIP जो हम लोग ने किया था प्रीवियस क्लास में, तो उसमें जाकर अगर हम लोग 100 IP रूट करते हैं तो वहाँ पे मतलब 5 एंट्री दिखा रहा है सर। हाँ, तो उसके सामने R मतलब लिखा हुआ है सर। R मतलब रिप और C मतलब तो आपने बोला कि शो नहीं करेगा। अरे बाबा, तुम तो वहां पर तो एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया रिप, तुमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया वो उसमें? अगर स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया होता तो वो राउटिंग टेबल CR और उसके साथ S भी दिखा रहा था, दिखने का बात है। समझ में आया? इसीलिए अगर तुम एक ही रूट, वो जो 3 राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखाया था उसमें तुम रिप कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद उसमें स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर दो, आप जाके शो आईपी रूट करो, देखो रिप नहीं दिखाएगा, उसमें इट विल शो द डायरेक्टली कनेक्टेड रूट और स्टैटिक रूट, रिप का कोई बात ही नहीं होगा। मतलब रिप नहीं है, रिप का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये सही नहीं, लेकिन एडी वैल्यू इसका ज्यादा है स्टैटिक राउटिंग के हिसाब से, इसीलिए राउटिंग टेबल में राउटर के पास ये इंफॉर्मेशन है कि भाई एडी वैल्यू किसका कम, इसका कम, मतलब इस रूट को दिखाओ क्योंकि इस रूट मेरे लिए सही होगा। दैट इज द पॉइंट, समझ में आया? क्योंकि लास्ट क्लास में तो स्टैटिक राउटिंग हम कॉन्फ़िगर नहीं किया था, हम तो सिर्फ रीप किया था, तो रीप तो दिखाएगा क्योंकि उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है और रीप था। तुम देखो जाके वो टेबल को देखो, उस वीडियो को तुम देखोगे तो देखोगे कि वो जो शो आईपी रूट किया ना, उसके अंदर जब R 0 के पास आया उसमें 2 डायरेक्टली कनेक्टेड और 3 रीप के थ्रू से। मिडिल का जो राउटर था उसमें देखो 3 डायरेक्टली कनेक्टेड 2 रीप, और राइट साइड का जो है मतलब राउटर 3 पॉसिबली जो है उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड 2 और डायरेक्टली कनेक्टेड 2 और 3 रीप। देखो तुम, मैंने जो बोल दिया बैठ के वो वीडियो चला के देख लो, देखोगे वही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल डिजाइन किया ना, रीप तो रीप को दिखाएगा। हाँ, लेकिन अगर वहां पर किसी भी हिसाब से तुम स्टैटिक कॉन्फ़िगर करो तो सेम प्रॉब्लम विल कम। और एक ही रूट है, तुम उसमें जाके EIGRP किया, रीप भी किया, तो
तुम देखो कि कौन सा दिखाएंगे, देख लो जाके, जिसका एडी वैल्यू कम होगा। एक ही राउटर में? हाँ बोलो। एक ही राउटर में, तो एक ही राउटर में दोनों कॉन्फ़िगर करें, स्टैटिक और आरआईपी? हाँ, कर सकते हो तुम स्टैटिक और रीप किया, तुम रीप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ सब दो तीन कर सकते हो, तीन भी करो ना, कोई नो प्रॉब्लम। तुम देखोगे कि अल्टीमेटली इट विल शो द लोएस्ट एडी वैल्यू रूट। समझ लो स्टैटिक नहीं है, रीप है, आईजीआरपी है, ओएसपीएफ है, तुम जाके देख लो जिसका एडी वैल्यू कम है वो रूट दिखाएंगे और बाकी नहीं दिखाएंगे। सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट। एडी वैल्यू जिसका कम, द मेन मुद्दा है क्या कि भाई एडी वैल्यू जिसका कम है हम उसको लेके चलेंगे। हाँ दूसरा कॉन्फ़िगर होकर रहेगा, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसका एडी वैल्यू कम हम उसके साथ बात करेंगे क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा रिलायबल होगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ राउटर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, अच्छा नाउ अब जो পয়েন্ট है যেটা এখন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা কি, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের রাউটিং প্রোটোকল বলছি, রিপ বলছি, ইআইজিআরপি বলছি, ওএসপিএফ বলছি, আর একটা ছিল আইজিআরপি এখন চলে না। তো এই যে রাউটিং প্রোটোকলগুলোর ডিফারেন্ট নাম, তার মানে তাদের যে কাজ করার পদ্ধতি সেটাও আলাদা আলাদা। যদি একই হতো তাহলে আর নাম দিয়ে আমার আলাদা করে লাভটা কি? ये जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, हम बोल रहे हैं क्या रीप, हम बोल रहे हैं क्या आईजीआरपी, आईजीआरपी, वेसपीएफ, सब हम बोल रहे हैं। तो जब नाम अलग हो जाएगा ना तो इसके मतलब कोई ना कोई डिफरेंसेस इसके अंदर होगा। अगर नाम अलग नहीं होता कि डिफरेंस नहीं होता तो नाम अलग करके क्या होगा, सभी तो एक ही काम करेगा। तो किसके हिसाब से ये काम थोड़ा बहुत अलग होगा, कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जिसके हिसाब से ये होगा कि भाई इसको रीप कह रहा है, ये इसका ये फीचर्स है, ये आईजीआरपी है इसका ये फीचर्स है। हो सकता है उसका सब प्रोटोकॉल का मेरिट्स डिमेरिट्स होगा, लेकिन काम करने का जो तरीका, কাজ করার যে পদ্ধতি, রিপ যেভাবে কাজ করবে ইআইজিআরপি সেইভাবে কাজ নাও করতে পারে, ওএসপিএফ সেইভাবে নাও কাজ করতে পারে। অর্থাৎ রুট সিলেকশন, লোড ডিস্ট্রিবিউশন, এগুলো কিন্তু পার্টিকুলার কিছু প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে भाग হয়ে যাবে। मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल का मेन काम क्या होता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन, नंबर 1। नेक्स्ट काम क्या होता है कि भाई सही तरह से अपडेट भेज दो सबके पास। तीसरा काम क्या हो सकता है कि भाई मेरा सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स है, तो हम कैसे लोड बैलेंस करेंगे। ये 3 काम होता है। तो ये 3 काम सभी का एक नहीं होगा क्योंकि हर एक प्रोटोकॉल का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये जो तरीका अलग अलग होता है, किसके हिसाब से ये तरीका डिसाइड होता है कि ये रीप ऐसे काम करेगा, आईजीआरपी ऐसे काम करेगा, आईजीआरपी ऐसे काम करेगा, वेसपीएफ ऐसे काम करेगा। तो क्या क्या तरीका होता है एक्चुअली, जिसके ऊपर डिपेंड करके ये तरीका डिसाइड होता है, डिजाइन होता है, उसको कहते हैं मेट्रिक। मेट्रिक जैसे कि मेट्रिक समझ लो कि सपोज तुम একটা পুলিশের চাকরিতে इंटरव्यू দিতে গেছো। सपोज तुम एक पुलिस का जो नौकरी है, कांस्टेबल या जो भी है, उसमें काम एडवर्टाइजमेंट निकल चुके हैं, तुम अप्लाई कर दिया, तुम्हारा एग्जाम होगा। तो वहां पर क्या मेट्रिक होगा, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट, चेस्ट, तुम्हारा लॉन्ग जंप का जितना चाहिए, हार्ट रेट, मतलब सब मिला के जिसका सही होगा उसको डिक्लेयर करेंगे भाई चलो तुम इंटरव्यू के, तुम पास हो गया, तुम इंटरव्यू के लिए जाओ। मतलब मेट्रिक होगा क्या क्या, इस सबको मिला के एक मेट्रिक होगा। बांग्ला যেটাকে বলে পরিমাপ, टोटल পরিমাপটা কত। तुम जब एक घर, तुमको घर से बुलाया कि तुम्हारा मम्मी या जो भी है घर में तुमको बुलाया कि भाई जा तो एक आलू लेके आओ बाहर से,
या 5 प्याज लेके आओ बाहर से, और कितना, अरे 500 लेके आओ। मतलब तुमको मेट्रिक बताया गया कि 500 ग्राम, 500 ग्राम तुमको लेना चाहिए। आलू कितना का, वो 2 केजी ले आना। তোমাকে বলো 2 কেজি নিয়ে এসো না, তার মানে তোমায় কেজিটা বলে দিচ্ছে। ইউ আর, দ্য কেজি ইজ ডিফাইন্ড, दैट इज द मेट्रिक। अगर केजी के जगह ये बोला गया कि भाई 2 टन ले आओ, तो डिफर हो गया ना, सो मेट्रिक डिफर हो गया ना, सो दैट इज द प्रोसेस। सो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक मेट्रिक होता है जिसके हिसाब से वो डिसाइड करता है ये कौन सा रूट मेरा बेस्ट रूट होगा, नंबर 1। दूसरा है अपडेट भेजने का तरीका। तीसरा है लोड बैलेंसिंग का, उसको कहते हैं मेट्रिक, जिसके हिसाब से ये तैयार होता है, যেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমার প্রোটোকলটা, রিপ যেভাবে কাজ করবে, রিপ যেভাবে আপডেট পাঠাবে, রিপ যেভাবে বেস্ট রুট সিলেক্ট করবে, রিপ যেভাবে লোড ব্যালেন্স করবে, তুমি দেখবে ইআইজিআরপি সেগুলো করছে না, ওএসপিএফ সেটা মানছে না। তার মানে কেন মানছে না? ওএসপিএফ তার একটা নিজস্ব প্রসেস আছে। ওএসপিএফ মেইনটেইনস ইটস ওন প্রসেস টু ডিসাইড which is my best route, what should how I should transmit the routing update. Third, how should I choose the I mean to say load balance, how could I balance the load. तो रीप का जो होगा वो एसपीएफ के अलग होगा, ईआईजीआरपी का अलग होगा। किसके हिसाब से अलग होगा? ये मेट्रिक के हिसाब से। ये मेट्रिक को कहते हैं, जस्ट इट इज कॉल्ड, द मेट्रिक इज कॉल्ड, इसके हिसाब से ये राउटिंग प्रोटोकॉल का काम करने का तरीका डिसाइड होता है। जैसे कि रीप जब लोड बैलेंस करता है ना, तो तब जाके इक्वल लोड बैलेंस करता है। मतलब तुम्हारा 124 समझ लो कि 512 बाइट का डेटा है, तो उसके पास 2 वे है, एक के थ्रू से 256, एक के थ्रू से 256, इक्वल लोड बैलेंस है। अनइक्वल लोड बैलेंस रीप सपोर्ट नहीं करता है, whereas EIGRP अनइक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल अलग अलग हो गया, उसका एल्गोरिथम अलग है, तो उसका काम करने का तरीका भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। लेकिन ये जो अलग, तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये अलग, इसके रिस्पेक्ट में ये अलग, किसके हिसाब से ये डिसाइड होगा? जिसके हिसाब से होगा उसको कहते हैं मेट्रिक। মেট্রিকের উপর ডিপেন্ড করে, একটা পরিমাপ, সেই পরিমাপের মধ্যে কি কি আছে আমি পরে আসছি, সেইটাকে বলছি আমি মেট্রিক, যেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমার রিপের একটা মেট্রিক, ওএসপিএফ মেইনটেইনস ইটস ওন মেট্রিক, ইআইজিআরপি মেইনটেইনস ইটস ওন মেট্রিক। So depending on the metric, the routing protocol executes its operations. Is it clear or not? Am I clear or not? Yes, sir. Okay. Next. Now this metric is not a single point metric. जैसे कि हमने बोला भाई तुमको कितना आलू चाहिए, तुम बोला 1 केजी आलू दीजिए, इसका कोई दूसरा मेट्रिक नहीं है भाई 1 केजी इसका वेट। लेकिन तुम जब एक पुलिस के नौकरी के लिए जाओगे तो सब तुम्हारा वेट नहीं, तुम्हारा वेट, तुम्हारा चेस्ट, तुम्हारा लेंथ, सब कुछ होगा। मतलब स्कूल मिला के तुम्हारा मेट्रिक होगा। इसको कहते हैं कंपोजिट मेट्रिक। मतलब बहुत सारे चीज जुड़ के एक कॉमन मेट्रिक तैयार हुआ है, जिसके हिसाब से तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो मेट्रिक होगा वो सिंगल मेट्रिक नहीं, कोई सिंगल इशू के भी बेस करके कोई मेट्रिक नहीं होगा, इसको कहते हैं कंपोजिट मेट्रिक। মানে তুমি যখন একটা চাকরির ইন্টারভিউতে যাচ্ছ, মানে পুলিশের ধরো, সেখানে কিন্তু তোমাকে শুধু বলে না যার হাইট বেশি হবে তাকেই নেব, কি বলবে? হাইট, ব্রেড, দৌড়নো, অনেক কিছু মিলিয়ে বললো এ 100 এত পেজ, তাহলে এই ইন্টারভিউর জন্য যাবে, এ 100 এত পেজে এই ইন্টারভিউতে ক্যান্সেল যাবেন। ঠিক একই রকম ভাবে আমাদের এই ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই। মেট্রিক মানে যার উপর ডিপেন্ড করে রাউটিং প্রোটোকলটা চলবে, সেই মেট্রিকটা কিন্তু একটা জিনিসের উপর না,
সেটা কিন্তু মাল্টিপল প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করে মেট্রিকটা, কমন মেট্রিকটা তৈরি হচ্ছে। সেই মেট্রিকটাকে ওই জন্য কি বলছি, কম্পোজিট মেট্রিক। মানে অনেকগুলো প্যারামিটারকে আমি জুড়ে কমন একটা জায়গা করলাম, করে বললাম এইটার উপর সাকসেসফুল হলে মেট্রিকের উপর ডিপেন্ড করে কাজটা চলবে। নাও হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দি কম্পোজিট মেট্রিক? These are the components. One is the bandwidth, second one is the delay, third one is the load, fourth one is the hop count, and the last one is the cost. What is the bandwidth? The data capacity of a link. एक लिंक तुम्हारे साथ मेरा जुड़ा हुआ है, कितना डेटा पर सेकेंड में हम तुमको भेज सकेंगे या तुम हमको भेज सकोगे, दैट इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब ये थिकनेस है, इसका बैंड कितना होगा जितना डेटा बिट वहां से जाएगा। डिले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिले मतलब मैंने यहां से डेटा भेज दिया, कितना टाइम बाद तुमको वो डेटा मिलेगा, दैट इज द डिले पॉइंट। डिले মানে আমি এখান থেকে পাঠালাম, তুমি কতক্ষণ বাদে আমার ডেটাটাকে রিসিভ করলে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ডিলে। লোড, হাউ মাচ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা আই শুড ট্রান্সমিট ইউজিং দিস লিঙ্ক, ইউজিং দিস ব্যান্ডউইথ, আমি কতখানি ডেটা পাঠাতে পারবো এই লিঙ্কটা ইউজ করে, এই ব্যান্ডউইথটাকে ইউজ করে। রিলায়েবিলিটি বলছি ইউজুয়ালি এ রেফারেন্স টু দ্য এরার রেট অফ হুইচ নেটওয়ার্ক লিঙ্ক। দেখা যাচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার कम्युनिकेशने 4टे रास्ता আছে, मैं यहाँ पर हूँ, तुम वहां पर हो, तुम्हारे साथ मेरा 4 रूट से कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर देखा गया 2 रूट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, डेटा सही तरह से नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी जो 2 रूट है दैट इज मोर रिलायबल। सो रिलायबिलिटी ऐसे निकालेगा कि एरर जितना कम जिस रूट में होगा उसका रिलायबिलिटी ज्यादा होगा नेचुरली। सो दैट इज व्हाई रिलायबिलिटी इज अ पैरामीटर ऑफ ए कम्पोजिट मेट्रिक। रिलायबिलिटी माने হচ্ছে যে রুটে আমার কম এরর জেনারেট করছে আমার কাছে সেই রুটটা হচ্ছে প্রেফারেবল রুট, আমার কাছে রিলায়েবল রুট। হপ কাউন্ট, হপ কাউন্ট মিন্স আমি তোমার ডেটাটা পাঠাচ্ছি, তোমার আমার মাঝখানে কতগুলো রাউটারকে আমি ক্রস করছি। হপ मीन्स 1 राउटर, राउटर इज कॉल्ड हॉप। मेरा यहाँ पर मैं हूं, वहां पर सजीद है, सजीद और मेरे बीच में एक रूट के 3 राउटर होगा, दूसरा रूट में 2 राउटर होगा। सो 2 राउटर का रूट मेरा प्रेफर्ड है, प्रेफर्ड रूट है, मतलब हॉप काउंट। मतलब कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे ट्रेन्स है, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं राजधानी को। क्यों? क्योंकि सब ट्रेन ही हावड़ा से स्टार्ट होगा, नया दिल्ली में जाएगा, तो सब स्टेशन के ऊपर से ही जाएगा, लेकिन राजधानी में स्टॉपेज, नंबर ऑफ स्टॉपेज कम है, हॉप काउंट कम है, इसलिए आई विल प्रेफर राजधानी। तो सिमिलरली इट इज हैपनिंग कि मेरा एक रूट है, मैं राउटर हूं, दूसरी तरफ सजीद का राउटर है, तो बीच में एक रूट में विभू है, सुदीप्तो है और भी कुछ है, और एक रूट है जहां पर तुम्हारा जो है अजीत है, जो है रूट में। तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ तुम्हारा जो रूट है उस रूट के अंदर दो रूट है, तो इसमें तुम्हारे पास जाने के लिए 3 लोगों को क्रॉस करना है, यहाँ पर 2 लोग को, तो इट इज मोर प्रेफरेबल फॉर मी। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द हॉप काउंट। नाउ हियर इज वन पॉइंट, ये जो इक्वल लोड बैलेंस का हम बात किया था ना रिप में, रिप इक्वल हॉप काउंट में लोड बैलेंस करता है, अनइक्वल हॉप काउंट में लोड बैलेंस नहीं करता है। मींस तुम्हारा एक नेटवर्क है, तुम बनाया, तो ए से बी तक जाने के लिए बीच में 2 रूट है, 2 रूट में इक्वल नंबर ऑफ हॉप काउंट है, यहां पर भी 3 राउटर है बीच में, यहां पर भी 3 राउटर है, तब रिप लोड बैलेंस इक्वली करेंगे। अगर अनइक्वल हॉप काउंट होगा
रीप वहां पर लोड बैलेंस नहीं कर सकेगा। इसीलिए हॉफ काउंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन ए कंपोजिट मेट्रिक, दैट इज द हॉफ काउंट। व्हाट इज कॉस्ट? Basically the cost is an arbitrary value. Why? Usually based on the bandwidth, monetary expense and other measurement that is assigned by a network administrator. Means cost means suppose यहाँ पर ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में डिजाइन करने, दो नेटवर्क में समझ लो कि इक्वल मेरा लोड बैलेंस है, मतलब से नंबर ऑफ राउटर्स एक ही है, लेकिन ये जो रूट है, इस रूट को एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा बहुत इसमें कम मॉनिटरी बर्डन होगा, लेकिन इस रूट में थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, तो हमको इस्तेमाल करने के लिए ये रूट सही लगेगा कॉस्ट के हिसाब से। तो ये कुल मिला के जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट के कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा उसको मेट्रिक वैल्यू कहते हैं। उस मेट्रिक वैल्यू के हिसाब से वो जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करेंगे 3 पॉइंट, क्या क्या? विच वन शुड बी माई बेस्ट पॉइंट, बेस्ट पाथ, सेकेंड वन द राउटिंग अपडेट भेजने का, थर्ड पॉइंट क्या होगा? लोड बैलेंसिंग का। दैट इज द प्रोसेस। अब बताओ कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलो, अदरवाइज आई शुड प्रोसीड। বলো যদি কোনো সমস্যা থাকে এখানে বল। স্যার আরআইপি তে যেটা বললেন যে সেম হপ কাউন্ট না হলে লোড ব্যালেন্সিংটা হবে না, সেটা কি স্যার ইআইজিআরপি তে ঠিকঠাক হবে? না না না, ইআইজিআরপি ক্ষেত্রে আনইকুয়াল লোড ব্যালেন্সিং হয়। ইআইজিআরপি ওএসপিএফ এরা আনইকুয়াল লোড ব্যালেন্সিং এ কাজ করে, বাট রিপ ইকুয়াল লোড ব্যালেন্সিং এ কাজ করে। স্যার আমরা কি ইআইজিআরপি তে লোড ব্যালেন্সিংটাকে স্পেসিফাই করতে পারি যে এই রুট থেকে এতটা পরিমাণ ব্যান্ডউইথ নেবে আর ওই রুট থেকে এতটা পরিমাণ ব্যান্ডউইথ হবে? না, 60-40 এরকম। ইআইজিআরপি যখন করাবো দেখবে ইআইজিআরপি কম্পোজিট মেট্রিক ক্যালকুলেশন কিন্তু খুব টাফ। সেখানে তার ভেতরে যখন আমরা ঢুকবো তখন দেখতে পাবে ওখানে কিন্তু ওর যে ক্যালকুলেশন, ওই ক্যালকুলেশন কিন্তু খুব কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন। আমি দেখাবো, বলে দেবো, মানে ওইটা আমাদের হাতে নেই, ওই ক্যালকুলেশনটা আমরা করতে পারি না। মানে করতে পারি না বলাটা ভুল, মানে মানে আমরা এই সিসিএনপি রেসপেক্টে আমরা করতে পারি না, কিন্তু সিসিআইই তে গিয়ে সেখানে কিন্তু আমাদের শিখতে হয় যে আমরা যদি প্যারামিটারের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে আমরা কোন রুটটাকে সিলেক্ট করব, এগুলো করব। বুঝতে পেরেছো? ওটা দেখবে, আমি দেখাবো, ইকুয়েশনটা দেখাবো। দ্যাট ইজ আ ভেরি কমপ্লেক্স ইকুয়েশন, সিসিএনপি আর সিসিআই এই যে কস্ট, এই যে কস্টটা বার করা না, এই যে ক্যালকুলেশনটা না, দ্যাট ইজ ভেরি টাফ। ওই কস্টের ক্ষেত্রে গিয়ে ওই কস্ট ক্যালকুলেশনটা ওখানে আছে, তোমাকে ওখানে বার করতে হবে। বেসিক্যালি আমরা এখানে ইকুয়াল কস্ট ধরেই করি, মানে আমরা যে নর্মাল ইআইজিআরপি তে যাই সেটা আমরা ইকুয়াল কস্টেই যাই, আনইকুয়াল কস্ট ক্যালকুলেশনে যাই না। মানে যাই না বলতে সিসিএনপি রেসপেক্টেই বলছি যে এখানে আমরা আনইকুয়াল কস্ট ডিস্ট্রিবিউশনে যাই না, কিন্তু তার উপরে কিন্তু আমরা যাই। মানে এক একটা ভাগ আছে, তো মানে তোমাকে প্রথমে এই জিনিসটা শেখাবে, তারপর তো এই জিনিসটা শেখাবে, তাই জন্য। অতএব আমি যদি বলি না ইকুয়াল কস্টে হয় না, এটা ভুল কথা। কস্ট ডিফার করতেই পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? কারোর কোনো কোয়ারি থাকলে বলো কিন্তু। तो राउटर हॉप कैसे काउंट करता है? राउटर हॉप काउंट मतलब जितना राउटर होगा, हॉप काउंट कैसे होगा? तुम ट्रेस रूट का एक रूट को तुम यहाँ पर बैठ के एक समझ लो google.com, जस्ट आई एम शोइंग यू, रुको, जस्ट आई एम शोइंग यू। বানানটা কি ভুল করলাম? ট্রেসারটি হবে বোধহয়, সরি সরি, হ্যাঁ। ট্রেসারটিতে দেখেছি অনেক সময় দেখা রিকোয়েস্ট টাইমড আউট বা ক্যান নট রিচ দ্য ডেস্টিনেশন, তাও তো কিভাবে কাজ করে সার্ভারের সাথে কন্ট্যাক্ট করে? এই যে ম্যাক্সিমাম 30 হপস এখানে বলছে। দেখিয়ে দিচ্ছে এগুলো।
এই যে একদম টপে যেটা দেখাচ্ছে দেখো 192.168.0.1 এটা কিন্তু হচ্ছে দিস ইজ দ্য গেটওয়ে অফ মাই আইএসপি গেটওয়ে, যেখান থেকে আউটসাইডে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা ওইখানে ওই গেটওয়েটা বসানো হচ্ছে রাউটারটা, তারপর বাইরেরটাই যাচ্ছে। এইভাবে টোটাল ব্যাপারটা চলে যাচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ, ওই জন্য বলছি অ্যালায়েন্স ব্রডব্যান্ড, দেখো এই দুটো অ্যাড্রেসই কিন্তু পাবলিক। আপনার স্ক্রিন আসছে না স্যার? সে কি? আমার তো ইউ আর প্রেজেন্টিং দেওয়া রয়েছে। স্যার আমাকে দেখাচ্ছে না। বাকিরা দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিন? হ্যাঁ স্যার, তোমার হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। কাল আমার হচ্ছিল স্যার, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। তাই হতে পারে তাহলে। হ্যাঁ এই যে ট্রেসিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, তার মানে তুমি google.com এ অবধি যেতে গিয়ে মাঝখানে তোমার টোটাল এতগুলো রাউটার পড়ছে। मैंने क्या किया, एक कमेंट यूज किया, क्या किया, tracerty google.com, उसमें जाके क्या हुआ, tracerty google.com में जाके স্যার मतलब আমি স্যার অন্য কোনো যদি দেখি গুগল ছাড়া তাহলেও দেখাবে? দাঁড়াও দেখিয়ে দিচ্ছি। tracerty বলো, কি বলো, কিছু বলো। স্যার ফেসবুক দেখাবে স্যার? দেখে নাও, দেখিয়ে দিল। দেখো এখানে কিন্তু নটা রুট, নটা রাউটার, 9 হপস 8 হপস, এখানে কিন্তু 9 হপস হয়ে গেল। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এটাই আমি বলছিলাম যে এখানে ট্রেস রুট করলে তুমি এখান থেকে এটাকে বার করতে পারবে। ওকে, এইবার হচ্ছে আমি যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেখানে ঢুকবো, দ্যাট ইজ দ্য components of the dynamic routing protocols. The main components, 3 components are there: data structures, routing protocol messages, third one is the algorithm. Data structures ta ki bolche? Routing protocols typically use the tables or databases for their operations. This information is kept in a RAM, kept in RAM, যেটা আমি একটু আগেই বললাম। जो साजिद या कौन हमको पूछा कि राउटिंग टेबल कहाँ रहता है, अभी कुछ देर पहले पूछा था, तो मैंने बोला कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स टिपिकली यूज द टेबल, जो टेबल यूज करता है राउटिंग टेबल, वो इस्तेमाल कहाँ पर, वो स्ट्रक्चर क्या कहाँ पर रहता है, रैम में रहता है। सेकेंड क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेजेस। Routing protocols are various types of use the various types of messages to discover the neighboring routers. जैसे हमने बताया, exchange routing information, perform other tasks to learn and maintain the accurate information about the, মানে routing protocol। স্যার আমাকে 10টা রাউটার দেখাচ্ছে এখানে। কাক কোথায়? স্যার facebook.com এ। মানে তুমি যেখানে বসেছো সেখান থেকে হয়তো মাঝখানে আরেকটা রাউটার আছে, আমি এখান থেকে বেরিয়েছি, আমার এখান থেকে হয়তো 8-9টা রাউটার হতেই পারে। আচ্ছা স্যার বুঝতে পেরেছি। হতেই পারে। আবার ধরো আরো তুমি দূর থেকে করছো, সেখানে আরো বেশি রাউটার হতেই পারে। আবার যে এমন জায়গা থেকে করলো সেখানে হয়তো দেখলে 5টা রাউটার দেখাচ্ছে, কারণ সেখানে হপ কাউন্ট কমে গেছে, এটা ডিফার করবেই। ওই জন্যই তো বললাম যে হপ কাউন্ট ডিফার করছে, বুঝতে পেরেছো? ওকে। তো রাউটিং প্রেটেবল মেসেজ কি বলছে, রাউটিং প্রোটোকল মেসেজ বলছে ওইটাই, যে ও কি করে মেসেজের থ্রু দিয়ে इट डिस्कवर्स द नेबर्स। नया एक नेटवर्क जुड़ गया तो उसका नेबर हो गया, भाई ये तो नया, मेरा तो नया नेबर है, डिस्कवर कर दिया। या चला गया कोई, राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, और अदर्स जो टास्क जैसे कि लोड बैलेंसिंग जो हमने बताया, ये जो मैसेज है वो राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेज कहता है। इसीलिए हमने ऊपर में लिखा है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डायनामिक राउटिंग। अगर तुमको पूछा गया कि भाई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का कितना कंपोनेंट है जिसके थ्रू से ये डायनामिक प्रोटोकॉल ओवरऑल जो डायनामिक जितना भी डायनामिक प्रोटोकॉल्स है काम कर सकता है, एक है डेटा स्ट्रक्चर जिसके हिसाब से राउटिंग टेबल बनता है, और वो राउटिंग टेबल कहाँ रहता है, रैम के अंदर रहता है। दैट इज वाई रैम इज वोलेटाइल, सो दैट इज वाई राउटिंग टेबल भी वोलेटाइल। जब तुम्हारा राउटर अगर कोई भी किसी भी तरह बंद हो जाएगा ना, तो राउटिंग टेबल वैनिश कर जाएगा। अगर तुमने वो कॉपी रन स्टार्ट करके सेव नहीं किया तो
वो पूरा चला जाएगा। अगर बंद हो जाएगा तो तुम ये काम करो, कॉपी स्टार्ट रन करके उसको फिर से ले आओ, दैट इज पॉसिबल। मतलब बैकअप होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। दूसरा है राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेज। क्या होता है राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेज में? मैसेज के थ्रू से राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, कोई भी नेबर को डिस्कवर करता है, सब कुछ करता है। थर्ड वन इज द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक्चुअली क्या होता है? स्टेप्स। ये डिफाइन द स्टेप्स, कैसे ये प्रोटोकॉल काम करेगा, কিভাবে প্রোটোকলটা কাজ করবে, মানে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে ইট ইজ আ প্রোগ্রামিং। অ্যালগরিদম আর প্রোগ্রামিং এর ডিফারেন্সটা কি? প্রোগ্রামিং আমরা কি রকম লিখি, তোমরা বোধহয় প্রোগ্রামিং করেছো কিনা আমি জানি না। আমরা করি ইন্টিজার নিলাম INT A B C, এবার করলাম C = A + B, প্রিন্ট করে যেমন সি তে প্রোগ্রাম করি। কিন্তু অ্যালগরিদম হচ্ছে এইটা কি তুমি ভাষায় লেখো, taken A, B, C as integer type, within C A + B চলা, মানে ভাষায় তুমি বলছো, in language you are explaining what you are doing. There is the difference between the programming and the algorithm. Algorithm is a statement of the programming, कैसे ये बनता है, और प्रोग्रामिंग होता है उसको बनाने का जो सिंटेक्स वो। सो क्या किया यहाँ पर? An algorithm is a finite list of steps, जो मैंने बताया, used to accomplish a task. So routing protocols use the algorithms for facilitating routing information and for best path determination. অ্যালগরিদমটা ডিসাইড করবে ওই প্রোগ্রামিংটা যে টেকনোলজি থ্রু দিয়ে চলবে। এটা তো একটা প্রোটোকল, মানে এটা সফটওয়্যার, তো এটা তো কিছু দিয়ে তৈরি করা আছে, তো সেটা কোন অ্যালগরিদমকে ফলো করবে, কি অ্যালগরিদমটা চলবে, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যালগরিদম, যার উপরে ডিপেন্ড করে এই অ্যালগরিদমটা চলবে, মানে অ্যালগরিদমের উপর ডিপেন্ড করে এই রাউটিং প্রোটোকলটা কাজ করবে। সো তিনটে পার্ট, ডেটা স্ট্রাকচার, রাউটিং প্রোটোকল মেসেজেস, and that last one is the algorithms. Is it clear or not? Is it clear or not? Yes sir. Okay. लास्ट दिन राउटिंग प्रोटोकॉल हम बताए थे, देख लो। जो नहीं बताया तो बताइए सर। अच्छा, एक्चुअली दो टाइप का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, एक है राउटेड प्रोटोकॉल, और इसको समटाइम्स इट इज कॉल्ड राउटेबल प्रोटोकॉल, और एक है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू से, राउटिंग प्रोटोकॉल होता है कि जो प्रोटोकॉल राउटिंग में हेल्प करता है, मतलब सिर्फ उसका काम तब होगा जब राउटिंग होगा, तो ये प्रोटोकॉल उसके लिए सही होगा। राउटिंग प्रोटोकॉल को तुम दूसरी ये जो इंट्रा नेटवर्क होगा वहां पर तुम इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, लेकिन राउटिंग के हिसाब से जब राउटिंग होगा तो राउटिंग में तुम इसको यूज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन ए राउटिंग प्रोटोकॉल इज द कम्युनिकेशन used between routers. One moment. বলো। হ্যাঁ, আমি তো ম্যাডামকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম অনেক দিন আগে, তাহলে আমি ক্লাস চলছে, ক্লাসটা হয়ে গেলে পাঠাচ্ছি। ওকে okay, so it allows one router to share information with other routers regarding the networks. जो मैंने अब बताया कि एक राउटर दूसरे राउटर से साथ उसका जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता है कि भाई मेरे अंदर ये रूट है, वो बोला उसके अंदर भी वो रूट है, चलो भाई एक्सचेंज कर लो। तो तुम्हारा हमारा बीच में कनेक्शन रहेगा, तो तुम्हारा कोई नोड मेरे नोड के साथ बात कर सकता है, मेरा कोई नोड तुम्हारा कोई नोड के साथ बात कर सकता है। It knows about and its proximity to other routers, जो मैंने अभी बताया। The information a router gets from another router using the routing protocol. Remember, एक राउटर के साथ जब बात करता है तो थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल, विदाउट राउटिंग प्रोटोकॉल ये बात नहीं कर सकता है। So using the routing protocol is used to build and maintain a routing table.
कि भाई मेरे राउटिंग टेबल है, इसके अंदर ये रूट है, तुम्हारे अंदर क्या क्या है, और चलो अपडेट कर लो, मैं अपडेट कर रहा हूँ, तुम भी कर लो, जो रूट मेरे हिसाब से होगा, तुम्हारे पास जो हिसाब से होगा, তোমার কাছে যা রুট আছে তুমি আমায় বলো, আমার কাছে যা রুট আছে আমি তোমায় বলছি, তাহলে দুজনেই ইকুয়ালি ব্যালেন্সড হয়ে যায়, সব রুট সবার কাছে জানি। তাই বলছি রাউটিং প্রোটোকল ডেসক্রাইবস দ্য ফলোইংস। ইফ ইউ আর আস্কড what is routing protocol, you can easily explain that routing protocol is a protocol which helps us when a router communicates with another router, then the protocol is responsible, that is called the routing protocol। लेकिन अगर तुमको क्या गया कि भाई রাউটিং প্রোটোকল তো हमने समझ गया, আমি তো বুঝে গেলাম যে রাউটিং প্রোটোকল তুমি কাকে বলছো, একটা রাউটার কথা বলে, তো অ্যাকচুয়ালি কি ফাংশনটাও এক্সিকিউট করে, এই যে কথাটা বলছি আমি কি কথা বলছি, ওখানে কি কি করি আমি। एक राउटिंग प्रोटोकॉल तुमने बोला भाई, हाँ राउटिंग प्रोटोकॉल तो समझ में आ गया, लेकिन इस प्रोटोकॉल का क्या स्पेशलिटी है जिसके थ्रू से एक राउटर दूसरे राउटर के साथ क्या बात करता है, क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। दैट इज these 4 points। हाउ टू सेंड अपडेट्स, राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्क्राइब्स कैसे एक अपडेट को तुम्हारे पास भेजना है, दूसरा राउटर के पास भेजना है, या दूसरा राउटर के पास से अपडेट को रिसीव करना है। नेक्स्ट, व्हाट नॉलेज इज कंटेंट इन दिस अपडेट, भाई तुम जो अपडेट बोल रहे हो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या रहेगा जिसके थ्रू से हम कहेंगे कि ये अपडेट है। और मैं भी जब तुमको कोई अपडेट भेजेंगे तो उसके अंदर भी क्या रहना चाहिए, कि उस राउटर कहेगा कि इस राउटर से अपडेट आया है, तो ये अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट के अंदर क्या रहेगा, व्हाट नॉलेज इज कंटेंट, दैट इज द सेकंड पॉइंट। The third is when to send this knowledge, कब ये भेजना चाहिए, सेकेंड पर सेकेंड में भेजना चाहिए, पर मिनट में भेजना चाहिए, या जब अपडेट होगा तब भेजना चाहिए। दैट इज द थर्ड, when to send this knowledge। The fourth is how to locate recipients of the updates। मैंने भेज दिया, मेरे को तो ये पता होना चाहिए भाई किसको भेज रहा हूं, कैसे उसको पास भेजना चाहिए, আমি কিভাবে তোমাকে দেব, তুমি কে, ফার্স্ট আই শুড লোকেট ইউ। আমি লোকেট করলাম, আমি বিভুকে আপডেটটা পাঠালাম সুদীপ্তকে, তাহলে কি করে হবে। সো ফার্স্ট আই শুড লোকেট বিভু, দেন আই শুড সেন্ড মাই আপডেট। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট, হাউ টু লোকেট রেসিপিয়েন্টস অফ দি আপডেটস। Am I clear or not? What is successor and feasible successor? এখানে feasible successor এখন আসছে কোথা থেকে, यहाँ पर राउटिंग प्रोटोकॉल में आता है ना सर। हाँ अभी नहीं, राउटिंग प्रोटोकॉल में यू आर राइट, लेकिन वो OSPF पे है, EIGRP है, अभी नहीं, वो तो बात का बात है, बहुत बाद में है, तब हम जाके डिस्कस करेंगे फिजिबल सक्सेसर क्या होता है, सब हम बाद में बात करेंगे। ओके वो बहुत बात का बात है, तुम पहले ले आया, ठीक है। ओके सो राउटिंग प्रोटोकॉल का एग्जांपल क्या होता है, जैसे रीप, IGRP, EIGRP, OSPF हमने बताया। बेसिकली IGRP अब नहीं चलता है क्योंकि बहुत सारे राउटर में IGRP का सपोर्ट नहीं है। जैसे आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ये जो हमारा लैब में जो राउटर है ना, उस राउटर्स में IGRP का कोई सपोर्ट नहीं है। আমাদের ল্যাবেতে যে IGRP মানে যে রাউটারগুলো আছে ওখানে কিন্তু কোনো IGRP কনফিগার করা যায় না। রিপ করতে পারো, EIGRP করতে পারো, OSPF করতে পারো, BGP করতে পারো, সব করতে পারো, এগুলো করতে পারা যায়। সো দিস ইজ দ্য রাউটিং প্রোটোকল। নেক্সট স্যার আইজিআরপির কাজটা কি স্যার, আইজিআরপির কাজ কি, তাই তো এইটা একটু বাদে বোঝাবো, কারণ আমি এইটা না বোঝালে তোমাকে আগে IGP EGP বুঝতে হবে, তাহলে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হতে হবে। এই যে প্রোটোকলের নাম তুমি দেখছো রিপ, IGRP, EIGRP, এই প্রত্যেকটার কিন্তু আলাদা আলাদা কাজের পদ্ধতি আছে। যেহেতু প্রোটোকলগুলো আলাদা, ন্যাচারালি বুঝতেই পারছো প্রোটোকলগুলো মানে প্রত্যেকের কাজ করার পদ্ধতি আলাদা। রিপ হচ্ছে রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল,
আইজিআরপি হচ্ছে ইন্টেরিয়র গেটওয়ে রাউটিং প্রোটোকল, এআইজিআরপি হচ্ছে এনহ্যান্সড আইজিআরপি, আইজিআরপি যেটা এক্সটেন্ডেড পার্ট, ওএসপিএফ হচ্ছে ওপেন সিস্টেম কি বলে ওপেন শর্টেস্ট পার্ট ফার্স্ট অ্যালগোরিদম ফলো করছে ওএসপিএফ প্রোটোকল। প্রত্যেকটা কাজ আলাদা, ঠিক আছে? আসবো আমি রিপ ওই 1 by 1 পরে আসবো, আমি আইজিআরপিটা একটু টাচ করে যাব না চললে, ঠিক আছে? ओके सर RIP हो गया और ARP का मतलब क्या होता है सर? एआरपी अलग, एआरपी तो अलग है। एआरपी तो एक नॉर्मल लेयर 2 प्रोटोकॉल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका काम है आईपी टू मैक कन्वर्शन। ओके ओके, उसके साथ Okay. इसका कोई नहीं है। लेकिन हाँ, राउटिंग जब होता है तो एआरपी का काम है, हाँ सर। एआरपी का काम है वहां पर। अगर नहीं है बोलेंगे तो ये सही, एकदम सही नहीं है, काम है, लेकिन वो इंट्रा नेटवर्क में होगा, जब बाहर जाएगा तब नहीं, ठीक है? अच्छा ओके, नेक्स्ट इज द राउटेड प्रोटोकॉल। हमने उस दिन बताया जी, राउटर जो ये प्रोटोकॉल का काम क्या है भाई, जो डेटा है उसको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दो, जाओ। किसके थ्रू से करेंगे? जो प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल को कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल और राउटेबल प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल या राउटेबल प्रोटोकॉल, जैसे कि आईपी, आईपी के थ्रू से हम डेटा भेजते हैं, और राउटिंग प्रोटोकॉल उस डेटा को लेकर दूसरा नेटवर्क में एक राउटर के साथ बात करता है, वो डेटा लेकर, मतलब वो आईपी डेटा राउटेड प्रोटोकॉल का डेटा लेकर जब दोनों राउटर के बीच में बातचीत होता है तो राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू से होता है। लेकिन वो डेटा जब भेजेंगे तब राउटेड प्रोटोकॉल के थ्रू से भेजेंगे, लेकिन बातचीत करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू से। सो दैट इज दिस इज यूज्ड टू डायरेक्ट यूजर ट्रैफिक। जो यूजर का जो ट्रैफिक है, जैसे कि समझ लो कि लास्ट क्लास में जो हम दिखाया था ना, वो जो पिक्चर मतलब जो डिजाइन हमने रीप कॉन्फ़िगर किया था, तो उसमें जो पीसी था, तीनों पीसी था, PC1 PC2 PC3, पीसी से लेकर डेटा जब राउटर तक भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है वो है राउटेड प्रोटोकॉल। मतलब हमने डेटा भेज दिया तुम्हारे पास, लेकिन हम जो लोकल नेटवर्क में है उसमें जो राउटर गेटवे है, मेरा डेटा मेरा घर से निकल के उस गेटवे तक पहुंचने का जो जिम्मेदारी जिसका है वो है राउटेड प्रोटोकॉल का। जैसे कि आईपी, और नोबल नेटवर्क होगा तो उसमें IPX, नॉर्मल तौर से होता है आईपी। इट प्रोवाइड्स इनफ इंफॉर्मेशन इन इट्स नेटवर्क लेयर एड्रेस, मतलब आईपी, to allow a packet to be forwarded from one host to another based on the addressing scheme. One host to another host, another host to another host, IP ये डेटा को ले जाएंगे। लेकिन जब राउटर के साथ एक राउटर का बात करने का बात होगा, तब वो बात करने के टाइम राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए, और जो बात करने के बाद जो डेटा भेजेंगे वो IP नेटवर्क के थ्रू से ही भेजेंगे। That is the routed protocol. It is a very popular question in Viva or the interviewer. For the interviewer very often asks this question to the students or in interview, that what is routed protocol, what is routing protocol, what is the difference of routing protocol and routed protocol, what is routable protocol, what is non-routable protocol. राउटेबल प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होता है, जैसे राउटेड प्रोटोकॉल का ही नाम है राउटेड प्रोटोकॉल, इट डायरेक्ट्स द यूजर ट्रैफिक, बट नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल में ऐसे कोई कुछ नहीं होता है। जैसे नेटव्यू एक प्रोटोकॉल है, नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल, वो उसका कोई ऐसा कोई काम नहीं है, वो डायरेक्ट ट्रैफिक को लेकर जाना चाहिए, भेजना चाहिए, वो भी नहीं भेज सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल। जो ट्रैफिक राउटेबल है उस ट्रैफिक के अंदर वो काम नहीं कर सकता है, जो कि आईपी कर सकता है। दैट इज व्हाई आईपी इज ए राउटेबल प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल। दिस इज द गोल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल का गोल्स क्या होता है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल। समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड दैट ये जो तुमने राउटिंग प्रोटोकॉल, তোমরা যে রাউটিং প্রোটোকল কন্টিনিউয়াস বলে যাচ্ছ, এটা করব কেন?
আমার এই রাউটিং প্রোটোকলের দরকার কি? What is the purpose of having the routing protocol? So the goal of a routing protocol is to build and maintain a routing table. This table contains the learned networks and associated ports for these networks. कौन सा पोर्ट में कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, ये सब कुछ पता होना चाहिए राउटिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से हर एक राउटर में. Routers use the routing protocols to manage the information received from other routers, जो मैंने अभी बताया, and information generated from the configuration of its own interface. मैं एक राउटर हूं, मेरे साथ अजीत है, सजीद है, सुदीप तो है, सब राउटर के साथ मेरा कनेक्शन है, लेकिन मेरा भी तो एक डायरेक्ट कनेक्टेड राउटर है, उसका भी तो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास होना चाहिए. बाहर का इंफॉर्मेशन जैसा रहेगा तो मेरा अंदर का भी तो इंफॉर्मेशन मेरे साथ रहना चाहिए कि मेरा अंदर का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क कौन सा इंटरफेस में कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, बाहर का इंटरफेस में कौन सा नेटवर्क में कौन सा बाहर का नेटवर्क कनेक्टेड है, ये पता भी होना चाहिए, अंदर का भी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. दैट इज रिटन हियर. When all routers in an internetwork are operating with the same knowledge, the network is said to have converged. जो मैंने कुछ देर पहले बताया, तुम्हारे पास 5 राउटर का इंफॉर्मेशन है, 5 इंफॉर्मेशन है, मेरे पास भी 5 इंफॉर्मेशन है, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है. ऐसा नहीं मेरे पास 4 या तुम्हारे पास 5, जितना भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए सबके पास उतना ही इंफॉर्मेशन है. तब जाके हम बोलेंगे कि भाई ये राउटर कन्वर्ज्ड हो गया, सब इंफॉर्मेशन आके इसके पास चला आया, तो कन्वर्ज्ड हो गया. जैसे कि उस दिन हमने दिखाया था कि ये जो तीनों राउटर हमने कॉन्फ़िगर किया था लैब में, हर एक राउटर के अंदर ही 5 इंफॉर्मेशन है, मतलब 5 ही होना चाहिए, हर एक के पास 5 इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए, तो 5 ही है. हमने दिखाया था ना शो आईपी रूट करके. राउटर 1 में क्या था, शो आईपी रूट करके 3 रिप 2 डायरेक्टली कनेक्टेड, बीच का क्या हुआ था 3 डायरेक्टली कनेक्टेड 2 रिप, तीसरा का क्या हुआ 2 डायरेक्टली कनेक्टेड 3 रिप, मतलब हर एक के पास ही 5 हो गया. मतलब हर एक राउटर के पास हर एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, सेम है. सो वी कैन से दैट ये राउटर सब राउटर कन्वर्ज्ड हो गया. समझ लो लास्ट क्लास में हमने कोई क्लास लिया था, तो साजिद को पूछा साजिद तुम बोलो तो क्या क्या है. साजिद बोला 1 मिनट सर, वो खाता निकाल के बता दिया कि सर आपने ये टॉपिक बताया, 6 टॉपिक. सुदीप तो को पूछा, सुदीप तो कि तुम बताओ, सुदीप तो बोला सर आपने तो 6 टॉपिक पढ़ाया था. रोहित को पूछा, रोहित बोला कि हाँ सर 6, मतलब सबके पास कंप्लीट है कि 6 टॉपिक सर ने लास्ट क्लास में बताया था. मतलब ये सही है, सब कन्वर्ज्ड हो गया, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन है, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है, मतलब सही इंफॉर्मेशन सबके पास है. So that is why it is called converged. Fast convergence is desirable because it reduces the time period of incorrect routing decisions. जितना स्पीड चाहे, जितना कम टाइम में चाहे, हर एक राउटर को कन्वर्ज होना चाहिए, सब रूट का इंफॉर्मेशन उसके अंदर होना चाहिए. প্রত্যেকটা রাউটার তার ফাস্ট কনভার্জেন্স সব সময় তার দরকার, কারণ প্রত্যেকটার মধ্যেই কিন্তু তার ইনফরমেশনগুলো চাই. কেন না, কোনো একটা রাউটার যদি একটু দেরিতে ইনফরমেশন পেলো তাহলে সে ভুল রাউটিং করে দিল. কেন বলছি, সাপোজ একটা নেটওয়ার্ক চেঞ্জ হয়েছে, কোনো একটা নেটওয়ার্কে কোনো চেঞ্জ হয়েছে, সেই ইনফরমেশনটা এই রাউটারের কাছ থেকে একটু দেরি হলো, এবার এখান থেকে কোনো ডেটা বেরোচ্ছে, শুধু ভুল রাউটারই चले गल. समझ लो साजिद एक राउटर है, मैं एक राउटर हूँ, साजिद का कोई नेटवर्क में चेंज हुआ है, तो साजिद के पास से जब मेरे पास ये अपडेट आएगा, अगर ये थोड़ा बहुत देर करके आएगा ना, अगर ये थोड़ा बहुत देर करके आएगा तो क्या होगा, मेरे पास पुराना रिकॉर्ड रह जाएगा. तो मैंने राउटिंग स्टार्ट कर दिया किसी भी तरह, तो डेटा भेज दिया, डेटा किसके पास भेजेंगे, मेरे पास तो पुराना रिकॉर्ड है, ओल्ड रिकॉर्ड का तो अपडेट अभी मैंने रिसीव नहीं किया, तो वो रॉन्ग नेटवर्क में चला जाएगा. तो इसीलिए कहते हैं कि फास्ट कन्वर्जेंस इज हाईली रिक्वायर्ड.
Am I clear or not? Yes, sir. Yes, sir. This is the autonomous Yes, sir. system. আমি autonomous system এ এখন আসছি না। প্রথম আমি যেটা বলছি টাইপস অফ ডাইনামিক রাউটিং, আচ্ছা না অটোনোমাস সিস্টেমটা বলে, হোয়াট ইজ অটোনোমাস সিস্টেম? বেসিক্যালি ऑटोनोमस सिस्टम मीन्स এই যে আমরা বলি না, দেখবে नेटवर्के फ्रीक्वेंटली हम लोग कहते हैं कि कौन सा डोमेन क्या है, तुम्हारा डोमेन क्या है, तुम्हारा काम करने का डोमेन क्या है, मतलब तुम कहाँ पर काम, कौन सा डोमेन में काम करते हो। तुमने बोला कि मैंने लिनक्स डोमेन में काम करता हूँ। तुमने कहाँ पर काम करता है, कौन सा डोमेन में? तुमने बोला कि मेरा डोमेन है से मशीन लर्निंग का डोमेन है। मतलब तुम्हारा एक लॉजिकल बाउंड्री है पर्टिकुलरली जहां पर वो जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ही तुम काम कर सकते हो, तो इसको कहते हैं डोमेन। तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम होता है कि जो लिखा हुआ है इज ए ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल व्हिच कुड बी एन आईएसपी और लार्ज एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो भी नेटवर्क, जितना भी नेटवर्क उसके अंदर एक लॉजिकल बाउंड्री है, उसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क हो सकता है, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मतलब जो आईएसपी होगा, उसका कंट्रोल उसका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर ही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रेस्ट्रिक्टेड होगा, उसके बाहर नहीं, क्योंकि बाहर और भी तो आईएसपी होगा। तो अगर हमने ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारा लॉजिकल रीजन ये है, मेरा लॉजिकल रीजन ये है, अगर नहीं होगा तो ये तो मिलजुल जाएगा, डिफरेंशिएशन तो चाहिए। तो बोला गया कि भाई एक काम करो, डिसीजन ये जो मिलजुल रहने के लिए ऐसा तो कोई या तो कोई बिल्डिंग खड़ा करके तुम बना नहीं सकते, ये तो लॉजिकल है। तो एक वैल्यू क्रिएट करो, वो वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा कि वो वैल्यू लेके जो चलेगा, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसके अंदर ही रहेगा, उसको कहता है ऑटोनोमस सिस्टम। एस वैल्यू अगर किसी का समझ लो, एक राउटर में तुम गए, जाके चेक किया कि उसका एस वैल्यू क्या है, तुमने देखा 100 सपोज, और भी एक राउटर के पास गया, तुमने देखा उसका एस वैल्यू भी 100 है, और एक राउटर के पास गया, देखोगे कि वहां पर भी एस वैल्यू 100 है। तुमको लगेगा कि अच्छा ये तो सबका एज वैल्यू 100, मतलब ये एक नेटवर्क एक लॉजिकल बाउंड्री के अंदर होगा। लेकिन और एक राउटर में तुम जब गए तो वहां पर देखा कि भाई इसका एज वैल्यू तो 102, मतलब ये जो नेटवर्क इसके दूसरा एक टाइप का नेटवर्क है जिसका एज वैल्यू डिफर हो रहा है। तो एज वैल्यू के हमको डिफर करेंगे कि ये जो नेटवर्क बाउंड्री है, अगर समझ लो ये जो 100 हमने बताया 3 राउटर के बाद कि भाई तीनों राउटर का एज वैल्यू 100 है, वो जो मेन राउटर होगा जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, अगर वो कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा तो वो तीनों राउटर के बीच ही होगा, वो 102 के ऊपर वो पॉलिसी नहीं लागू होगा, যেটা আলাদা হবে তার উপর হবে না। খুব সিম্পল কথা বলছি, তোমরা অ্যালায়েন্স ব্রডব্যান্ড ধরো ইউজ করছো, পাশেই তোমাদের নেটওয়ার্কের পাশেই ধরো উইশ নেটের একটা ব্রডব্যান্ড আছে, আর একটা দিকে আছে মেঘবালা। তুমি কি কখনো মেঘবালার ব্রডব্যান্ডে ঢুকে যেতে পারবে? তুমি কি কখনো উইশ নেটের ব্রডব্যান্ডে ঢুকে যেতে পারবে? यू कांट। तुम्हारा जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसका है अलायंस का, तुम्हारा पास में एक और भी एक आईएसपी है, वो है विशनेट, और दूसरे तरफ है मेघबाला, 3 चल रहा है। ये क्या मुमकिन है कि तुम चाहोगे नहीं मेरा तो अलायंस में प्रॉब्लम हो रहा है, चलो भाई मेघबाला में कनेक्ट कर लो? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तीनों अलग आईएसपी है, तीनों का नेटवर्क सब कुछ डिफर होगा। तुम कैसे इस नेटवर्क के उस नेटवर्क में जाओगे? ठीक उसी तरह सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तुम्हारा एक नेटवर्क चल रहा है और एक नेटवर्क भी चल रहा है, दोनों मिल ना जाए इसीलिए एक लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट किया कि भाई तुम्हारा एज वैल्यू क्या है, तो तुम्हारा जो नेटवर्क है जितना भी होगा सब कुछ वो उस
उसको बोल दो कि तुम्हारा एज वैल्यू ये है, और मेरा जो क्लाइंट होगा सबको बोल देंगे कि मेरा एज वैल्यू ये है, तो ऑटोमेटिकली इसका और इसका दोनों में कोई मिलजुल नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि कभी ना कभी इस एज के वैल्यू के साथ इस एज वैल्यू का कनेक्शन चाहिए, तो बीच में एक प्रोटोकॉल होगा, उसको कहता है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो मल्टीपल एज को कम्युनिकेट करता है। और भी काम है बीजीपी का, और भी काम है, वो हम बाद में बोलेंगे, देखेंगे। तो दिस इज द एज वैल्यू, समझ में आया या नहीं? यस सर। ওকে, এইবার এখানে দুটো জিনিস আছে আমি বলে দিই একটু। ওয়ান ইজ আইজিপি, অ্যানাদার ইজ ইজিপি। হোয়াট ইজ আইজিপি? যেটা এখানে বলেছে দেখো, ইন্টিরিয়ার গেটওয়ে প্রোটোকল। আইজিপি, আইজিআরপি নয়, ইটস নট আইজিআরপি, ইটস আইজিপি, interior gateway protocol, refers to a routing protocol that handles the routing within a single OS। तब जाके ये प्रोटोकॉल बनाया कि भाई एक काम करो, तो तुम्हारा सिंगल ओएस के अंदर जो काम करेगा उसका प्रोटोकॉल अलग होगा, और एक इंटर एज कम्युनिकेशन जब होगा, मतलब ये एज वैल्यू 100 के साथ एज वैल्यू 101 के साथ जब कम्युनिकेट होगा, तब जाके और टाइप का प्रोटोकॉल होगा, उसको कहते हैं ईजीपी, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और तुम्हारा एज के अंदर जो चलेगा वो होगा आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर ही ये सब रहता है, जैसे कि हम दिखा रहा है एक पिक्चर, जस्ट आई एम शोइंग यू। ये देखो, इसका एज वैल्यू देखो, देखो इसका एज वैल्यू 1000 है, इसका 2000 है, उसका 3000 है, तीनों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन होगा आईजीपी के थ्रू से, उसके अंदर भी आईजीपी के थ्रू से, उसके अंदर भी आईजीपी के थ्रू से। लेकिन अब अगर जरूरत पड़े तो ये तीनों एज वैल्यू, डिफरेंट एज वैल्यू का कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कैसे होगा? देख लो, यहां पर ईजीपी चलाया, आईजीपी हर एक के अंदर चलेगा, ईजीपी बाहर में चलेगा। देखो यहां पर एक आईजीपी है, यहां पर भी आईजीपी है, यहां पर भी आईजीपी है। अब तीनों में कम्युनिकेट होना चाहिए, तो क्या कैसे होगा? ये देखो, ईजीपी यहां पर चलाया, ये देखो आईजीपी, रीप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईजीआरपी सब आईजीपी के अंदर है, और ईजीपी के अंदर है बीजीपी। बीजीपी का काम है दो अलग एज वैल्यू के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, और एक कॉमन एज वैल्यू के अंदर जब कम्युनिकेशन होगा वो होगा आईजीपी के थ्रू से। इज इट क्लियर ये पिक्चर से? यस सर। मतलब जब डिफरेंट एज के साथ बात करना है तो भाई बीजीपी के थ्रू से करना पड़ेगा, और मेरा ही फैमिली का बात है तो मैं बात कर सकता हूं। ओके, अच्छा, ये हम लास्ट नेक्स्ट दिन में ये डिस्कशन होगा, ठीक है? अब तक ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नो सर।